Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is chapter 8 soil resources going on, and today we discuss in this video mountain soils and desert soil. Okay, and in this chapter we already discussed four type of soil, that is alluvial, black, red or laterite soil. So now to discuss here left to mountain soil and desert soil. Okay. So again we start this topic from the definition of soil. Soil is loose material that lie on top of the land. Okay. This definition I already discussed so many times. So it is a loose material that lie on the top of the earth surface. Okay, and it is a mixture of so many things like rock, mineral, water, and air. Clear? So we start the main topic: mountain soil. So mountain soil are mainly found on the hill slope, and these soil occupy about 8% of the total land area of India. Means this is your map, and in green color we show the mountain soil. Okay, and this type of soil mainly found in the hilly region. These are the Himalaya regions. Okay, Jammu Kashmir, Himachal, Uttarakhand, Sikkim or Arunachal Pradesh. Clear? And near about 8% area covered with mountain soil of the total land area of India. India में से total land का 8% area covered with mountain soil. Okay, so we start. Next is formation of mountain soil. So the soils are formed due to mechanical weathering caused by snow, rain, temperature variation. Means आपने ऑलरेडी 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था वेदरिंग एंड डेनुडेशन. ओके, सो वेदरिंग मीन्स क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक. जो वेदरिंग होती है बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है: फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल मीन्स फिजिकल वेदरिंग की बात हो रही है. ओके, कि मीन जब पर्टिकुलर कोई रॉक ब्रेक डाउन हो रही है बाय द स्नो, बाय द रेन या बाय द टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से. ओके, ऑफ दैट रॉक ब्रेकडाउन होगी एंड ऑफ दैट कन्वर्ट इन द सॉइल. तो वो क्या है? माउंटेन सॉइल. व्हेन your rock break down by the physical weathering या mechanical weathering caused by snow, rain, temperature variation. So simple definition there: the soil are formed due to the mechanical, you can say physical weathering. Like weathering means breakdown. You can also write down weathering caused by snow, rain, temperature variation. Okay. uh, in very simple language I will tell you. Just see here how temperature affect the rock. Okay, या ड्यू द टेम्परेचर की वजह से आपकी रॉक इजीली ब्रेक डाउन होती है. हाउ? सो दिस इज रॉक फॉर एग्जांपल, एंड यू नो टू योर रॉक mixture of so many minerals. Okay, और every minerals is on color. अपना एक कलर होता है. ओके, और every colors observe the heat in different ratio. Black color observe the maximum heat and white color reflect ज्यादा करता है. ओके, सो जब एयर सनलाइट सॉरी आपकी जो रॉक जो है डायरेक्ट सनलाइट में आती है तो आपकी रॉक वार्म होने की वजह से एक्सपेंड करती है. ओके, एंड नाइट टाइम में जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है दैट टाइम योर रॉक कॉन्ट्रैक्शन होती है, सिकुड़ जाती है. ओके, एक्सपेंड मींस बाकी तरफ फैलना और कॉन्ट्रैक्शन मींस इनसाइड तरफ सिकुड़ जाना. ओके, और जब एक ही रॉक में डिफरेंट मिनरल्स होते हैं तो डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व जो हीट को ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है वो सेपरेट सेपरेट है. सो आपकी एक रॉक के डिफरेंट रेशियो से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो अल्टीमेटली टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जब डे टाइम में टेम्परेचर हाई होगा तो वो एक्सपेंड होगी, और नाइट टाइम में जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगी. कॉन्ट्रैक्शन तो सिकुड़ जाना, एक्सपेंड मींस फैल जाना. ओके, सो ड्यू टू दैट योर रॉक ब्रेक हो जाती है, और समटाइम स्नो और रेनफॉल की वजह से भी आपकी रॉक इजिली ब्रेक हो जाती है. ओके, सो we start here. Next characteristics
या we can say features of mountain soil. So these soil are heterogeneous in nature and their character change with parent rock and climate. अब heterogeneous क्या होता है? Diverse in character, जो डिफरेंट थिंग्स से बना हुआ है. यू नो कि इन हिमालयाज सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है, तो एवरी वेजिटेशन का अपना डिफरेंट रोल प्ले होता है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू रॉक जो होती है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है माउंटेन सॉइल की, हिट्रोजेनियस में डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स होती है. ओके, एंड देयर कैरेक्टर चेंज. और सपोज को दिस योर माउंटेन रॉक, और इस पर्टिकुलर सॉइल में कौन सी क्वालिटीज होगी ये डिपेंड करेगा पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक में किस रॉक से ये ब्रेकडाउन होने से बनी हुई है, उस दैट पर्टिकुलर रॉक में किस तरह का मिनरल थे या किस तरह के न्यूट्रिशन थे, वही इसमें आ जाएंगे. ओके, एंड क्लाइमेट, और यू नो टू क्लाइमेट जो होता है इज ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल. ओके, जनरली बोला जाता है कि जिस क्लाइमेट में, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, वैसे ही हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, वैसे हमारा नेचर सोच थिंकिंग हो जाती है. ओके, सो सेम है कि आपके जो माउंटेन सॉइल तो वो हिट्रोजीनियस नेचर की होती है, डिफरेंट डाइवर्स ऑफ कैरेक्टर होते हैं इसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स होती है इसमें. ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस अलाई इन द हिमालयस रीजन. ओके, एंड देयर कैरेक्टर, और उसके जो सॉइल के जो कैरेक्टर होते हैं इज आल्सो डिपेंड ऑन पेरेंट रॉक, मींस जहां से वो ऑरिजिनेट हुई है उस पर्टिकुलर रॉक में जो कैरेक्टर होंगे वो उसमें आ जाएंगे. और सेकंड, क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा उधर पर्टिकुलर प्लेस का, तो अकॉर्डिंग दैट जो उसका जो कैरेक्टर है वो चेंजेस आती रहती है. ओके, दिस आर फर्स्ट point of characteristics, yeah, we can say feature of mountain soil. These soil are heterogeneous in nature and their character change with parent rock or climate. Okay, so we start second point. The soil are very rich in humus but are deficient in potash, phosphorus and lime. अब ये क्वेश्चन आपको मैं पहले से बोलता रहा हूँ कि 6 टाइप ऑफ सॉइल्स है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में आना है. इन 6 टाइप ऑफ सॉइल में से कोई भी किसी पर्टिकुलर सॉइल का आ सकता है कि विच टाइप ऑफ मिनरल्स आर रिच इन दैट पर्टिकुलर सॉइल, और विच टाइप ऑफ मिनरल्स डेफिशिएंसी इन दैट पर्टिकुलर सॉइल. ओके, किसी भी सॉइल का नाम आ सकता है, उसका अपने बताना है कि किस तरह के वो उसमें मिनरल्स ज्यादा हैं और किस तरह के मिनरल्स कम हैं. ओके, सो इन माउंटेन सॉइल्स में क्या है, ह्यूमस ज्यादा है. ह्यूमस प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स. जो आपकी लीव्स है, जब प्लांट से लीव्स नीचे गिरती है तो डिकम्पोज होती है और सॉइल से मिक्स हो जाती है, उससे ह्यूमस प्रोड्यूस होता है. ओके, सो द सॉइल आर वेरी रिच, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन है, जितने ज्यादा प्लांट होंगे उतने ह्यूमस ज्यादा होगा. ओके, एंड डेफिशिएंसी किस चीज की है, पोटास, फास्फोरस और लाइम की डेफिशिएंसी में कमी है. ओके, एंड द सॉइल आर स्पेशली सुटेबल फॉर प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफी, spices and tropical fruit. So this type of crops are grown in mountain soil, especially plantation. इसमें टी, कॉफी और डिफरेंट टाइप ऑफ जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस होती हैं, एंड ट्रॉपिकल फ्रूट. ओके, एंड रीजन वेयर इट फाउंड, सो वी ऑलरेडी डिस्कस स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, दिस ऑल सम पार्ट ऑफ असम आल्सो हियर. ठीक है, तो दिस इज रीजन वेयर माउंटेन सॉइल आर फाउंड. ओके, so this is a topic to discuss mountain soil. Firstly, it is about 8% area covered with mountain soil, and it is found mainly in the hilly region and formation due to the weathering of mechanical weathering caused by the snow, rain, temperature variation. Okay, जब particular rock जो है break down हो रही है by the physical या chemical, सॉरी फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग. ओके, एंड कैरेक्टर्स के जो सॉइल्स होती है आपकी माउंटेन सॉइल आर heterogeneous in nature and their character change with the parent rock or climate. Okay, and the soils are very rich in humus but are deficiency in potash, phosphorus and lime. Okay, and different type of crops are grown, especially this soil are suitable for the plantation of tea, coffee, spices and tropical fruit. Okay, so now region we already discussed Jammu Kashmir, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, some part of Assam, Nagaland and Uttarakhand. Okay, so many are there. So we start last 6 type of soil, that is the desert soil.
So desert soil cover near about 4% of the total geographical area of India. This is your desert soil in Rajasthan, okay, and southern part of Punjab, okay. So here only 4% area cover of country, and after that these soil are found in those regions which receive less than 50 centimeter rainfall. कि मीन्स डेजर्ट सॉइल आपको वहीं मिलती है जहां रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, मीन्स बहुत ही कम रेनफॉल होती है और दैट एरिया में आपको डेजर्ट सॉइल देखने को मिलती है. क्लियर? सो डेजर्ट सॉइल कवर 4% of total geographical area of India. These soil are found in those regions which receive less than 50 centimeter rainfall. Okay, so we start next. Characteristics and features of desert soil. Okay, so the soil contain considerable amount of soluble salt. You know to कि राजस्थान में जब रेनफॉल लेस होगी तो उसमें मिनरल बहुत ज्यादा होते हैं. ओके, और उसमें क्या है, सॉल्ट सबसे ज्यादा होता है. ओके, क्लियर? द सॉइल कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट. सॉल्ट की क्वांटिटी यहाँ पर ज्यादा है. क्लियर? क्योंकि आपका वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है एंड मिनरल्स ज्यादा रह जाते हैं. ओके, और स्पेशली सॉल्ट की क्वांटिटी यहाँ पर ज्यादा है. सो नाउ नेक्स्ट इज द सॉइल कंटेन लो परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर में जो ह्यूमस है, वी ऑलरेडी डिस्कस किया था इन द माउंटेन सॉइल में कि ह्यूमस वहां पर ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पर क्या है, प्लांटेशन ज्यादा है. लेकिन डेजर्ट रीजन में क्या है, लैक ऑफ वेजिटेशन. सो ड्यू टू दैट हियर लो परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, कि द सॉइल कंटेन लो परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो आपकी डिकम्पोज हो रही है लीव जो है, ठीक है, ह्यूमस जो है वो बहुत ही कम होता है. ओके, ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि वहां पर ड्राई क्लाइमेट हो, कि ह्यूमस कैसे प्रोड्यूस है, वहां पर मॉइस्चर हो, ठीक है, वाटर कंटेंट हो और लीव्स हो. लेकिन राजस्थान में क्या है, आपको जो डेजर्ट रीजन है वहां पर क्या है, ड्राई क्लाइमेट है, अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर है एंड अब्सेंस ऑफ वेजिटेशन है. ओके, दैट्स व्हाई लो परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो सर क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि व्हाई इन डेजर्ट सॉइल contain low percentage of organic matter. So due to the dry climate and absence of vegetation. Okay, and the soil is alkaline in nature as there is no rainfall to wash soluble salt. अब ये थोड़ी सी जो सॉइल जो है वो अल्काइन नेचर की, क्योंकि इसमें क्या है, अल्काइन नेचर मींस क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मिनरल की क्वांटिटी टू मच है. और टू मच क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है. अगर रेनफॉल होगी तो जो सॉल्ट है या अदर और जो थिंग्स है जो अल्काइन बना रही है सॉइल को, ठीक है, वो वॉश आउट हो जाएगी. लेकिन जब रेनफॉल ही नहीं होगी तो वो वॉश आउट नहीं होती है. ओके, तो ड्यू टू दैट आपकी जो क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स है वो डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है. तो ये जो सॉइल है वो थोड़ी सी अल्कलाइन इन नेचर की है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की क्वांटिटी टू मच है. क्लियर? सो द सॉइल आर इनफर्टाइल. सॉइल क्या है, इनफर्टाइल होती है. बट विद द इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स द ड्राउट रेजिस्टेंट एंड सॉल्ट टॉलरेट ड्राई क्रॉप्स such as cotton, wheat, millets, pulses, maize, barley are grown. Okay, कि मीन्स ये सॉइल जो है वो क्या है, इनफर्टाइल है, बट विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन वी ग्रो सम क्रॉप्स दोज आर ड्राउट रेजिस्टेंट, मीन्स जो ड्राउट कंडीशन में इजिली ग्रो हो जाती है. ओके, और सॉल्ट को वो टॉलरेट कर लेती है. ठीक है, ऐसी क्रॉप्स कौन सी होती है, कॉटन, व्हीट, मिलेट्स मीन्स जो बाजरा होता है. ओके, पल्सेस, मेज मीन्स मक्का, और बार्ले मीन्स जो जौ होती है. ओके, इन योर लैंग्वेज आर ग्रोन. ओके, ये सारी चीजें ग्रो हो जाती है इन द डेजर्ट बट विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स. ओके, और दिस ऑल द क्रॉप्स नीड वेरी लेस, वी कैन से ड्राउट रेजिस्टेंट कंडीशंस में इजीली ग्रो हो जाती है. ओके, एंड रीजन वेयर इट फाउंड, सो a very small area where deserts are found, especially western Rajasthan or northern Gujarat and southern Punjab. कि means western part of Rajasthan, पंजाब का southern part and गुजरात का northern part are like desert soil. Okay, this is your topic we discussed today here. Only two types of mountains soil and desert soil we discuss here. Okay, I hope understand to all. And now after that
tomorrow we discuss in this chapter soil resources में soil erosion. Okay, up to here means what is the soil, importance of soil, and factor affecting the soil, formation of soil, and after that 6 type of soil. up to here आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का आना है. ओके, इन दिस चैप्टर टोटल 10 मार्क्स है. up to here desert soil 5 marks, or left 5 marks in the second part of this chapter, that is the soil erosion. Okay, so we start soil erosion in next video. Okay, thank you.